سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہلا شاہ اور میں ہوں حیدر آوان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، آپ ہمیں یوٹیوب پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں، youtube.com/24newshd وزٹ کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسد عمر کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ گیس روزانہ فراہمی کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کو بڑھا کر 240 تک لے جایا گیا ہے۔ پہلے 270 بھی گئی تھی، اس کو 240 ہے، اس کو دوبارہ بڑھا کر 290 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر لے جایا جا رہا ہے، یعنی 100 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ روزانہ اضافی گیس دی جائے گی کہ الیکٹرک کو۔ اس کے ساتھ کہ الیکٹرک جو بن قاسم پہ ان کے یونٹس ہیں، جو ڈیول فائرڈ یونٹس ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ایندھن سے وہ چل سکتے ہیں، ان یونٹس میں سے کچھ یونٹس شروع میں اور تمام یونٹس کچھ دن کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے۔ فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے، ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن کی تھی۔ اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، نیپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا۔ نیپرا نے اپنی پبلک ہیئرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیئرمین نیپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نیپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا۔ ہمارا مقصد آج صرف اتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ان شیڈیول غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو فی الفور کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گیس سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ الیکٹرک کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ جو کراچی کے تقریباً 3/4 آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے، وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب ہم آگے کے لیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، یہ بڑی بدقسمتی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اضافے کے لیے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹ سائن کیے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے نہیں کیے گئے کہ وہ جب بجلی آئے گی تو باقی پاکستان کی طرح کراچی کس طریقے سے اس بجلی سے مستفید ہو سکے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہم نے فیصلے پچھلے چند ماہ کے اندر کیے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے سال گرمیوں سے پہلے، یعنی 2021 کی گرمیوں سے پہلے 550 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے مہیا ہوگی۔ اس وقت تقریباً دن پہ منحصر ہوتا ہے 2900، 3000، 3100 تک جا سکتی ہے، تو اس کے اندر 550 میگا واٹ کے اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھیں تقریباً 18% اضافہ کیا جائے گا کراچی میں بجلی کی فراہمی کا اگلی گرمیوں سے پہلے۔ پھر اس سے اگلا سال جو آئے گا اس اگلے سال کی یعنی 2022 کی گرمیوں سے پہلے 800 میگا واٹ مزید اضافہ کیا جائے گا، یعنی 550 میگا واٹ اگلے سال اور 800 میگا واٹ اس سے اگلے سال، تو مجموعی طور پہ 2022 یعنی 2 سال بعد کی گرمیوں سے پہلے 1350 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کراچی میں اضافہ کیا جائے گا۔ پھر تیسرا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں، اس میں سے آپ سمجھ لیں تقریباً 90% جو میں فراہمی کی بات کر رہا ہوں اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے بھی فیصلہ کر دیا ہے،
काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फरामी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, और लकी को भी देखा, ये हमने किए तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा जरूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी जरूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती ना हो। तो इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर जो पीछे खड़े हैं उनसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। मुलाहिजा कर रहे वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उन्होंने कहा कि कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सुबह का आगाज कीजिए 24/9 के साथ, पीर से जुमा 9:03 पर, सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मैं समझता हूँ केपी की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 5 है, पंजाब की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 4 हैं, बलूचिस्तान की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 2 हैं, और सिंध हुकूमत की अगर कारकर्दगी देखी जाए 10 में से 7 या 8 है। बायोलॉजिकल अटैक्स के लिए उसी किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे जिस किस्म के सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। बलूचिस्तान में इनकी अलायंस हुकूमत है PTI की, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो उसको कैसे तारीफ की जा सकती है? और मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल ही रहेगी, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात वो नहीं करेंगी। देखिए नजम सेठी शो पीर से बुध रात 11:03 पर, सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
नसीम ज़हरा एयरटेल, पीर से जुमेरात रात 8:03 पर, सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। 71 साल, एक जुमला, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में अमन आएगा, मईशत बेहतर होगी। कब होगा ये सब? मुल्क की आबादी का 65%, कौम का मुस्तकबिल यानी 14 करोड़ नौजवान, 28 करोड़ हाथ। इसके बाद आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को अहदे से हटा दिया गया है। कामरान बंगिश को मुशीर इत्तलात KP तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अजमल वजीर को करप्शन के इल्जामात पर ओहदे से हटाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया गया है। कामरान बंगिश को मुशीर इत्तलात KP तैनात कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक अजमल वजीर को करप्शन के इल्जामात पर ओहदे से हटाया गया है। 45 लाख का लेकिन कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिएगा, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँ। नहीं फिर दो नहीं, फिर 10% दूँगा। अगर नहीं कटी ना तो 10% दूँगा। ये नहीं आपको कमिटमेंट कह रहा हूँ, ठीक है सर? नहीं ये इसको ये नहीं, आई एम टेलिंग यू वेरी राइट, बिकॉज वो अगर नहीं कटेगी तो मैं ज्यादा दूँगा उसको लेके। नहीं तो GST के किस का ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई? सर एक चीज जो है वो मैंने तो नहीं अपने गवर्नमेंट ने आपको दिया 10 करोड़, आपने 10 करोड़ के अंदर जो है उस बजट को कंज्यूम करना, ला के उसके GST अंदर कभी नहीं होती। GST इंक्लूसिव ऑफ GST और इंक्लूसिव ऑफ GST थी, और दे आर टू टर्म्स। वो तो हम पूछेंगे ना, डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि ये जो आप पैसे दे रहे हो इस पे GST का क्या है। हाँ वो पूछेंगे। आपको रिस्पेक्ट वो जाएगा क्या, वो GST के साथ जा रहा है या उसके अलावा? वो अकाउंट्स ऑफिसर से ना किसी ने बुला के ना उसे पूछ लेंगे जो चैनल की GST होती है क्या करते हैं, आप काट लेते हैं, सरकार में जमा कराते हैं, चैनल पे देते हैं। देखो उसमें मैं आपको बता दूँ, अगर GST के ऊपर बात होगी इस पे फिर कल मैं क्लियरिटी लूँगा। नहीं आई एम 100% श्योर। मैं आप कल मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ देखो ये अगर रोजाना के हिसाब से ये नई चीज आएगी। नहीं सर, ये शीट है हमारी जिस पे हम बैठ के बात करते हैं, और मैं आपको इसको टैली कराया, इस अमाउंट को टैली कराया करूँगा वर्क ऑर्डर के साथ, ठीक होगा सर? इन अमाउंटों को मैं टैली कराया करूँगा वर्क ऑर्डर। अजमल वजीर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नुमाइंदे से गुफ्तगू सामने आ गई है। ऑडियो टेप में अजमल वजीर मुबैना तौर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मामलात तय कर रहे हैं। अजमल वजीर ने मुबैना तौर पर 2 करोड़ में से 45 लाख कमीशन मांगा। वज़ीर आला महमूद खान ने अजमल वजीर के ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तहकीकात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि ऑडियो लीक का मामला अहम है, जिसको जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान ने अजमल वजीर के ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है और तहकीकात के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑडियो लीक का मामला अहम है, जिसको जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने अरशद मलिक के खिलाफ 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है मुलजिम अरशद मलिक ने जुर्म का एतराफ किया और माफ करने की इस्तदा की है। तो ये रिपोर्ट सामने आ गई है, 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि शवाहिद से जाहिर होता है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। जस्टिस सरदार अहमद नईम लिखते हैं अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि खौफजदा या हिरासा किया गया है। रिपोर्ट सामने आई है, नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि मंजर आम पर आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने अरशद मलिक के खिलाफ 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार
की है। रिपोर्ट में कहा गया है मुलजिम अरशद मलिक ने जुर्म का एतराफ किया और माफ करने की इस्तदा की है। शवाहिद से जाहिर होता है अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि खौफजदा या हिरासा किया गया। मुलजिम अरशद मलिक ये भी साबित नहीं कर सका कि उसने अपनी मर्जी के खिलाफ तमाम मुतनाज़े काम किए। नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ और मेहर नासिर की मुलजिम जुडिशल अफसर से मुसलसल मुलाकातों से साबित होता है अरशद मलिक तक उनकी रसाई हमेशा से थी। ये भी वाज़े किया गया इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम अफसर जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिला। रिपोर्ट में ये वाज़े की गई है जज अरशद मलिक ने केसेस का फैसला करने के बाद दौरान उमरा हुसैन नवाज से सऊदी अरब में मुलाकात भी की है। जज अरशद मलिक अपने अहले खाना के हमरा उमरा करने गया और नासिर भट्ट ने फिर से मुलजिम अफसर से राब्ता किया और हुसैन नवाज से मुलाकात की। अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये तयशुदा मुलाकात थी। मुलजिम अफसर ने नवाज के खिलाफ अपने ही जारी किए गए फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद ही लिया। मुलजिम अफसर अरशद मलिक ने तस्लीम किया 2000 से 2003 में मुल्तान तैनाती के दौरान मुतनाज़े वीडियो बनाने वाले मियां मोहम्मद तारिक से जान पहचान हुई और ये भी बात सामने आई इंक्वायरी रिपोर्ट में अरशद मलिक ने नासिर भट्ट समेत दीगर से मिलने वाली धमकियों और ब्लैक मेलिंग से मुतल्लिक कभी भी अपने अफसर को आगाह नहीं किया है। इसी पर ज्वाइन किया है हमें, एक बार फिर हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। सलीम बुखारी साहब, 17 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है, बल्कि ये बात की जाए कि वाज़े तौर पर मुस्तरद किया गया है इस बयान को। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक नई कंट्रोवर्सी अब शुरू होने जा रही है, इसलिए कि 2-3 किस्म के बयानात हमारे सामने हैं। एक वो बयान है जो उन्होंने अभी जजी थे वो, और जिसे अब वो ये कह रहे हैं कि वो प्रेशर के तहत वो हल्फिया बयान जो है उसके ऊपर दस्तखत करवाए गए थे, वो ड्राफ्टेड आया था, मैंने उसके ऊपर साइन किए। और एक अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने है, और दूसरी तरफ अरशद मलिक साहब का वो मौक़िफ़ हमारे सामने है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में बताया है। उन्होंने उन तमाम एलिगेशंस की नफी कर दी है जो उस हल्फिया बयान में मौजूद थे या उसके बाद ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो अब हमारे सामने नतीजा आया है, जो रिपोर्ट आई है। तो अब देखना ये है कि क्या उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने मौक़िफ़ को की वजाहत कर सकें। वो उस वक्त तक तो वो जज थे, जज के होते हुए बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। वो जिन प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं, इनको सिवाय उनके कोई और क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि वो प्रेशर कहां से थे। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट यकीनन आपके सामने होगी। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि सामने आई है, सर क्या कहेंगे इससे मुतल्लिक? जी, मैंने पूरी रिपोर्ट तो अभी खुद तो नहीं देखी, लेकिन अभी सलीम बुखारी साहब का मैं तज्जिया सुन रहा था, और अगर उनका तज्जिया जो है वो मौजूदा रिपोर्ट पर बेस्ड है और मौजूदा रिपोर्ट में उन्होंने इस तरफ उनकी कोई भी बात अगर नहीं मानी, उनका जो मौक़िफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया था या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और उनकी कोई बात अगर नहीं मानी गई तो यकीनन फिर इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनका मियाँ साहब से मिलना जो था वो बिल्कुल बेमानी था, और उस पे बल्कि ना सिर्फ बेमानी उस तरह से नहीं था, बल्कि मानी खेज इन वे इसलिए था कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि ये जो फैसले किए हैं उन्होंने, ये जो एवन फील्ड में तो दूसरे जज थे, ये 2 जो फ्लैगशिप है और ये एक दूसरा अल अजीजिया का केस है, तो ये तो दोनों इसमें रीट्रायल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एटलीस्ट रीट्रायल की तरफ जाना पड़ेगा, वगरना एक्विटल की तरफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें जा सकता है। तो ये तो बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इनका चूंकि स्पेसिफिकली ताल्लुक जो था नाता इस केस के साथ बंध गया था कि इस केस की निस्बत से उन्होंने ये मुलाकातें की हैं, या इस केस की निस्बत से एक वीडियो आई है, या इस केस की निस्बत से एक वीडियो में कहा गया है कि उनको ब्लैकमेल किया गया है। तो उस हद तक ये जो 2 फैसले जिसका मैंने जिक्र किया,
अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप, इन दोनों में इस वक्त एक उभाम पैदा हुआ है और उस उभाम का फायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को नहीं हो सकता बल्कि वो एक्यूज्ड को होगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, बहुत अहम बात की है इरफान कादिर साहब ने कि फैसलों को रीट्रायल की तरफ जाना चाहिए। देखिए, इरफान कादिर साहब हमारे लिए एक मुस्तनद शख्सियत है। कानून के बारे में उनका कहा हुआ हर लफ्ज जो है हम उसका एहतराम करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो साबका बयानात, चाहे वो हल्फिया बयान था जो कोर्ट में पेश किया गया, चाहे उसके बाद वो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो उस वक्त तक जज थे और बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं जिन्हें मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर इरफान कादिर साहब समझते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नवाज शरीफ और कंपनी की तरफ से नहीं था, जिनकी तरफ से प्रेशर था। अब वो जो उनका मौकफ है इस वक्त, जबकि वो नौकरी से फारिग हो चुके हैं, अभी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसकी विंडिकेशन के लिए कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि इरफान कादिर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि केस जिसके खिलाफ अपील की हुई है नवाज शरीफ ने, उसमें अगर किसी को फायदा इन डेवलपमेंट से पहुंच सकता है तो वो एक्यूज होता है, प्रोसिक्यूशन को वो फायदा नहीं पहुंचता है। तो और मैं दूसरी बात उन्होंने कही कि वो रीट्रायल की तरफ जा सकता है। यस, ये भी बिल्कुल लीगल पॉइंट ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, और मैं चाहूंगा कि इरफान कादिर साहब इस पर जरूर तबसरा फरमा दें, कि अब जो अरशद मलिक साहब कह रहे हैं उन मजबूरियों से निकलने के बाद कि मेरे साथ ये सारी ज्यादती, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, नवाज शरीफ कंपनी की तरफ से प्रेशर जहां से था वो उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन उनके इशारे बिल्कुल वाजे हैं। इसके ऊपर इरफान कादिर साहब जरा कुछ फरमा देंगे तो मेरी भी तस्दीक होती। जी इरफान कादिर साहब, ये बुखारी साहब ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है उठाया और मैं समझता हूँ क्योंकि ये केस ऐसा है जिसपे के बात जो है वो अदलिया पे आ रही है, लिहाजा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज को मलूज़े खातर रखेगा कि ना सिर्फ कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लिहाजा इंसाफ होता हुआ नजर तब ही आएगा अगर फिलहाल जज अरशद मलिक की कोई भी बात ना मानी जाए और इस ट्रायल को, सारे प्रोसेस को गलत करार दे दिया जाए। अब अगली चीज जो है, इसमें सिर्फ मामला जज अरशद मलिक तक नहीं है, एक ड्यू प्रोसेस होता है कानून में, आइन में, वो शुरू से ही फॉलो नहीं किया गया इस केस में। और वहां पे जैसे मैंने कहा कि पहले मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि 3 रेफरेंसेस का फाइल होना एक ऐसे केस में जो कि एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्स का केस है, तो वो बजाते खुद वायलेशन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। और अगर उसको हम सामने रखें और फिर उसके बाद अहकामात जारी करना सुप्रीम कोर्ट का और चेयरमैन नैब को पाबंद कर देना कि आप ये रेफरेंस जरूर फाइल करें, तो ये चीजें भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखनी चाहिए और इस पे मियां साहिबान के जो वकला है उनको भी असर्ट करना चाहिए। और अगर ये तमाम चीजें जो हैं वो कानून के तनाजर में, आइन के तनाजर में अगर बयान की गई और रखी गई तो ये केस रीट्रायल की तरफ कम जाएगा और एक्विटल की तरफ ज्यादा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ थे। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है मगर एक ब्रेक के बाद। Nestle Everyday Mixed सुबह का आगाज कीजिए 24/9 के साथ पीर से जुमा 9:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मैं समझता हूँ केपी की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 5 है, पंजाब की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 4 हैं, बलूचिस्तान की कारकर्दगी अगर 10 नंबर हैं तो उसमें से 2 हैं और सिंध हुकूमत की अगर कारकर्दगी देखी जाए 10 में से 7 या 8 है।
बायोलॉजिकल अटैक्स के लिए उसी किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे जिस किस्म के सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। बलूचिस्तान में इनकी अलायंस हुकूमत है पीटीआई की, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो उसको कैसे तारीफ की जा सकती है? और मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल ही रहेगी, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात वो नहीं करेंगी। देखिए नजम सेठी शो पीर से बुध रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। नसीम ज़हरा एयरटेल पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 71 साल एक जुमला, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में अमन आएगा, मईशत बेहतर होगी, कब होगा ये सब? मुल्क की आबादी का 65%, कौम का मुस्तकबिल यानी 14 करोड़ नौजवान, 28 करोड़ हाथ जो उठे तो मुल्क की तकदीर बदल डाले। जज्बों का एक समंदर। फिर से बात करेंगे नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने अरशद मलिक के खिलाफ 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया मुल्जिम अरशद मलिक ने जुर्म का इतराफ किया और माफ करने की इस्तदा की है। वाज़ेह रहे शवाहिद से जाहिर होता है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने यह रिपोर्ट में लिखा, अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि खौफजदा या हिरासा किया गया। अरशद मलिक ये भी साबित नहीं कर सका कि उसने अपनी मर्जी के खिलाफ तमाम मुतनाज़े काम किए। नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ और मेहर नासिर की मुल्जिम जुडिशल अफसर से मुसलसल मुलाकातों से साबित होता है अरशद मलिक तक उनकी रसाई हमेशा से थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी बात वाज़ेह की गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुल्जिम अफसर जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिला और जज अरशद मलिक ने केसेस का फैसला करने के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से सऊदी अरब में मुलाकात भी की है। अरशद मलिक अपने अहले खाना के हमरा उम्रा करने गया और नासिर भट्ट ने फिर से मुल्जिम अफसर से राब्ता किया और हुसैन नवाज से मुलाकात की। इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है, जज अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज शरीफ से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह तयशुदा मुलाकात थी। मुल्जिम अफसर ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपने ही जारी किए गए फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद ही लिया। मुल्जिम अफसर अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि 2000 से 2003 में मुल्तान तैनाती के दौरान मुतनाज़े वीडियो बनाने वाले मियां मोहम्मद तारिक से जान पहचान हुई। अरशद मलिक ने नासिर भट्ट समेत दीगर से मिलने वाली धमकियों और ब्लैकमेलिंग से मुतल्लिक कभी भी अपने अफसरान को आगाह नहीं किया। अरशद मलिक ने दबाव के तहत मुलाकात करने के बयान के दिफा में कोई सबूत पेश नहीं किया है। अरशद मलिक की नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, नासिर भट्ट समेत दीगर की मुलाकातों को इत्तेफाकी करार नहीं दिया जा सका। रिपोर्ट में यह कहा गया है, मुल्जिम अरशद मलिक की नवाज शरीफ, हुसैन नवाज समेत दीगर से मुलाकातें करना ज़ाब्ते इखलाक की दफ़ा 7, 30 और 31 की खिलाफ वर्जी है। जबकि मुल्जिम जुडिशल अफसर का एक तरफ ये कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया गया और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले का आखिरी पैरा मुल्जिम के मौक़िफ़ की नफी करता है। वाज़ेह तौर पर यह मेंशन किया गया इंक्वायरी रिपोर्ट में, अरशद मलिक ने अपने दिफा में जितनी भी दस्तावेज़ात पेश की वो तमाम गैर मुसद्दिका फोटो कॉपियाँ पेश की जिन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुल्जिम अरशद मलिक के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है और मुल्जिम ने इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की, बल्कि कहा कि उसने मुलाकातें दबाव के तहत की हैं।
साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब हमारे साथ हैं। अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है जराइम पेशा गिरोह में रजा कराना तौर पर ना सिर्फ शमूलियत अख्तियार की है, बल्कि ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिसमें जाहिर हो कि उन्हें खौफजदा किया गया या हिरासा किया गया। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि ये शवाहिद दिए थे या नहीं दिए थे, ये तो जब डिटेल सामने आएंगी या अगर ये चैलेंज करते हैं इसको तो वो आर्गू करेंगे कि उन्होंने शवाहिद दिए थे या नहीं दिए थे। बज़ाहिर जो मुझे कुछ अंदाज़ा है इसके बारे में, उन्होंने ये ज़रूर कहा था, इफ आई रिकॉल प्रॉपर्ली, कि मैंने जो कुछ किया है उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये उसने ज़रूर कहा, ये 2 या 3 जगह पर उसने ये ज़रूर कहा कि मुझे दबाव के तहत ये सब कुछ मैंने किया, मगर मैंने ये किया जब ये जजमेंट पास कर चुके थे उसके बाद की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो धमकी दी गई थी उसके बारे में कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं कही है। जी बिल्कुल ठीक। सर, ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है रिपोर्ट में कि मुल्ज़िम अरशद मलिक के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है और मुल्ज़िम ने इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की, बल्कि उसने मुलाकातें दबाव के तहत की हैं। और ये भी बात सामने आई है कि ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके कि वो वाज़ेह हो कि ये दबाव डाला गया इन पे या फिर हिरासा इनको किया गया। देखिए, मैं ज़रा सा इसको मैं थोड़ी वजाहत करनी पड़ेगी इसकी। मिसकंडक्ट जो है वो दबाव का शायद इतना ज़्यादा वो नहीं था जितना कि वो वीडियो के ऊपर था। जो चीज़ जिक्र किया गया है मिसकंडक्ट, उस पे ज़्यादा जिक्र है और इसके ऊपर नहीं है। दबाव डालना या किसी को दबाव में आना जो है ये उस वक्त जाहिर होता है कि जब ये उस दबाव के तहत अगर जजमेंट के अंदर वो दबाव नजर आए कि आपने दबाव से वो जजमेंट दिया, तो फिर तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये दबाव के तहत दिया गया जजमेंट। जजमेंट के अंदर वहाँ पर एविडेंस मौजूद है और जाहिर है कि हाई कोर्ट जो है उस एविडेंस को परखेगा और परखने के बाद वो ये बताएगा कि जजमेंट सही था उस एविडेंस का या जजमेंट सही नहीं था उस एविडेंस के ऊपर। अगर जजमेंट सही है उस एविडेंस के ऊपर, जो एविडेंस मौजूद था वहाँ पर, जो कोर्ट में मुख्तलिफ फरीकैन ने जो एविडेंस दिया था, अगर वो उसके बेसिस के ऊपर जजमेंट सही है तो इसका मतलब ये है दबाव के तहत जजमेंट नहीं दिया गया है। अगर वो एविडेंस के तहत नहीं है या वो जो एविडेंस मौजूद है उससे मुताबिकत नहीं रखता वो जजमेंट, तो फिर नजर आएगा कि वो क्या कहते हैं दबाव के तहत दिया गया। मगर तीसरा पहलू भी है कि अगर एविडेंस नहीं था उसके बावजूद कन्विक्ट कर दिया तो फिर एक नया पहलू नजर आएगा और वो नया पहलू ये है कि दबाव तो था ही नहीं, इसलिए कि वो तो कन्विक्ट किया है, एक्विट नहीं किया उस केस के अंदर जिसमें के दबाव क्या कहते हैं एविडेंस मौजूद था, तो ये नहीं था। तो ये चीजें देखने की हैं। ये बहुत सारी मुख्तलिफ पहलू जो हैं इसके अंदर सामने आएंगे, मगर ये उसी वक्त आएंगे जबकि केस चलेगा और हाई कोर्ट के अंदर ये बात आएगी। मगर हाँ, मिसकंडक्ट उसने एडमिट किया है, मिसकंडक्ट पे उसने डिनाई नहीं किया है, और वो मिसकंडक्ट एक है विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए जज, कि वो ऐसे वो उसमें मुलव्विस था जो कि एक जज को मुलव्विस नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अनवर मंसूर साहब, जैसा कि रिपोर्ट में इस नुक्ते को भी वाज़ेह किया गया है, जैसा कि आपने जुर्म तस्लीम की बात की, 3 आपने पहलू सामने रखे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे लिखा गया कि जुर्म तस्लीम किया मगर इस्तदा की गई कि माफ कर दिया जाए, अगर फॉर एग्जांपल आने वाले वक्त में केस आगे बढ़ता है, जुर्म तस्लीम वाज़ेह तौर पर यह साबित हो जाता है, तो आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ के फैसलों को रीट्रायल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मेरा भी इस पर बड़ा क्लियर वो है। इसके भी 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो मुलाकात की और जो बाद में ये कहा गया कि ये कमजोरियां रह गई हैं जजमेंट के अंदर, और बाद में नवाज शरीफ से जाके मिले और उमरा के ऊपर मुलाकात हुई, ये सब चीजें जो हुई हैं जजमेंट के बाद हुई। जजमेंट से पहले सिर्फ एक धमकी का पहलू एक है जो कि मौजूद है,
इससे पहले मुलाकातों का नहीं है सिलसिला। नंबर 1 ये जरा जहन में रखिएगा। दूसरा जहन में ये जरूर रखिएगा कि जो जिस बेसिस मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोर्ट ये देखेगी और देखना चाहिए कि जो एविडेंस मौजूद है क्या ये जजमेंट उस एविडेंस के बेसिस के ऊपर दिया गया है या नहीं दिया गया। महज ये कहना कि एक जज जो था वो करप्ट था, महज ये कहना कि एक जज जो है उसने फैसला दबाव के तहत दिया है, महज ये कहना कि ये जजमेंट जो है ये किसी न किसी उसके बेसिस के ऊपर जजमेंट सेट असाइड नहीं हो सकता। जजमेंट सेट असाइड उसका होता है कि अगर ये दोनों पहलू साथ मिल जाएं, ये कि एविडेंस एविडेंस था और सफिशिएंट नहीं दी गई है उनको सजा, या एविडेंस नहीं था उसके बावजूद सजा दी गई है, या कोई ऐसा उसमें मिले और इसके साथ वो शामिल हो जाए कि धमकी के तहत ये दबाव में आ गए, तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो उस सूरत में फिर वो जरूर सेट असाइड हो सकता है। मगर महज एक चीज के ऊपर कि वो दबाव में आ गए या उनको किसी ने कह दिया जिसके बेसिस के ऊपर जजमेंट उन्होंने गलत दे दिया, ये जो है ये ग्राउंड नहीं है सेट असाइड करने का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोस्त। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब, आपने अपनी माहिराना राय दी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमें ज्वाइन किया है अमानुल्लाह कंडरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, और सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमानुल्लाह कंडरानी साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा, ज़ाब्ते इखलाक की दफ़ा 30 के तहत किसी भी जज को किसी फरीक से मुलाकात या राब्ता नहीं करना चाहिए, इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी नुक्ता वाज़ेह किया गया है। उसके बाद फिर ये जजमेंट किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारा जो तरीका है इंसाफ का और जो निज़ाम रहा है और जो निज़ाम होना चाहिए इंसाफ का, उसका तो बिल्कुल यही तकाजा है जो ज़ाब्ता इखलाक कहता है। बल्कि इसमें जस्टिस कार्नेलिस के बारे में बता दें, अयूब खान जब यहाँ डिक्टेटर की हुक्मरानी थी तो वो चीफ जस्टिस थे। कहते हैं वो अपने ज़मान 7 साल 8 साल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे, कभी उन्होंने जनरल अयूब से मुलाकात तक नहीं की। इवन सरकारी किसी फंक्शन जो कौमी दिन होते उन दिनों में भी उनसे वहाँ किसी फंक्शन में भी वो नहीं जाते थे। तो ये वो तकाजे होते हैं जो फरीकैन के सामने ये अपने आप को एक मुनसिफ साबित किया जाता है। जज साहब ने जो किया वो इंतहाई गलत था और अभी वो साबित भी हो गया है। तो यकीनन ये जो मुलाकात है वो गलत था और उसके गलती का अभी पूरी तरह जो डिटेल जो अभी वजूहात या जो तफसीलात आई हैं जिनको उन्होंने परखा है हाई कोर्ट के जो इंतजामी कमेटी है जिस पर उनको बरतरफ किया गया है, तो ये चीज़ें साबित हो गई हैं। तो अब जाहिर बात है ये कि जज इस तरह रहने काबिल नहीं होता है जो फरीकैन से मुलाकात करे और उनसे बाद में जो भी फैसले किए हैं, जैसे अनवर मंसूर कह रहे थे, ये तो ठीक है चूँकि अपील पेंडिंग है और उस अपील के अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ सामने नहीं लाई जाएंगी और ना वो इनसे इन्फ्लुएंस होंगे, वो गवाही को देखेंगे। मगर इससे इखलाकी पहलू जो है वो केस का जरूर मुतासर हुआ है। इस केस के अंदर जज साहब ने क्या कारनामा दिखाया है, इखलाकी पहलू मुतासर हुआ। अमानुल्लाह कंडरानी साहब, आप साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा। सर, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी, कोई इत्तेफाकी नहीं थी, ये वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट में कहा गया और साथ में ये भी कहा कि साबित नहीं कर सके कि उनके जितने भी सबूत थे वो ये साबित नहीं कर सके, उन्हें हिरासा किया गया हो, दबाव के तहत बयान रिकॉर्ड कराया गया हो, या फिर ये मुलाकातें जो है वो किसी दबाव के तहत की गई हो। नवीद चौधरी साहब से राब्ता करते हैं। आपको बताते चलें कि ये वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। मुल्ज़िम अरशद मलिक ने अपना जुर्म तस्लीम किया, मगर इस्तदा की कि उसे माफ़ कर दिया जाए। जज को अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना लाजिम होता है, जो कि नहीं किया गया। ज़ाब्ता की दफ़ा 30 के तहत किसी भी जज को किसी भी फरीक से मुलाकात या राब्ता नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।